last week I uploaded one video that how I grew over making 50,000 a month to 5 lakhs a month now as a remote software developer. And I received a lot of comments and queries in my DMs that people were asking how did I reach there, what was my roadmap, what tech stacks did I learn, how did I apply for the remote jobs, how did I look out for the founders to apply for the remote roles and all. So in this video I'll be discussing all about that, and we'll be discussing how did I land up a 90 LPA remote offer from a US startup, and what did I learn in my journey, and how you can pick things from my journey and apply it to yourself. So guys, my experience is around now 4.5 years, and my major of the experience is in front end development and quite a bit of in Web3 as well. But abhi recently I'm working as a full stack developer, front end oriented in a remote startup from US in SF, and my compensation is breakdown around 50 LPA plus 40 LPA ESOPs vested over 4 years. So lump sum 55k plus 45k in ESOP, around 100k US dollars. So बहुत सारे लोगों की queries थी that they also wanted to apply for remote roles and they wanted to know what was my journey. And अभी तक अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो you can check that out as well. I have discussed some topics vaguely here and there in previous videos, so आप उसको भी देख सकते हैं तो you will get an idea. So basically I can start. So most of you already know I started as a fresher in TCS, and वहाँ पे I worked around 2.5 years, and there I learned major of my front end development skills. मैंने स्टार्ट किया था विद जावास्क्रिप्ट एंड HTML CSS I learned from Udemy. थोड़ा मैंने कॉग्निजेंट में इंटर्नशिप किया हुआ था तो I picked up from there as well. And later on my major courses that I learned was from Namaste React and Namaste JavaScript. These two things helped me to excel the skills on the JS skills, and यही मेरे को help भी किया था to do my first switch. मैंने 2.5 years के बाद I started looking out for switch, and मेरे को majorly how was I applying was from Naukri and was from Wellfound. तो around that time I did not have any brand associated with me. तो मेरे को only thing that I could differentiate my profile is through building good projects. तो हमने अक्षय सैनी सर ने हमें कोर्स में ही 2 प्रोजेक्ट बनवाए थे. तो आई जस्ट बिल्ड लाइक अ यूट्यूब क्लोन एंड एक स्विगी का क्लोन यूजिंग द लाइव API. उस टाइम पे आई थॉट लाइक इवन दिस वाज लाइक अ वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट फॉर मी, बट टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ आई डोंट थिंक क्लोन बनाने से आपको इतना डिफरेंशिएटर मिलेगा. सो बिल्ड सम गुड प्रोजेक्ट्स, मेरी तरह गलती मत करिएगा. बट उस टाइम पे आई वाज नॉट टारगेटिंग द हाई रिमोट रोल जॉब्स. मेरे को बस ये था कि इफ आई एम एबल टू गेट अराउंड 10-15 LPA दैट वुड बी इनफ. So I did my first switch like that. मैंने from the fairly remote role opportunity I got from LinkedIn, I was looking for remote role, so मैं ऐसे कहीं भी apply कर लेता था. And I built my connection like this कि मेरे connections में most of the people were also looking out for remote roles. So after searching 1-2 महीने के बाद I found one HR who was recruiting for an agency out of Saudi Arabia, and I had an interview with them, just a chill discussion about my projects and all, and एक interview के बाद I was able to get converted, and वहाँ पे मेरे को एक remote role मिला था. Although they were not offering me much, but मेरे को remote role मिल गया था around that switch. I had worked for there for around 1 week, but उसके बाद I started interview again because I wanted a more hike, and मैं अभी भी TCS में notice period serve कर रहा था. So and all this was just on the basis of my projects that I have built. तो कुछ ऐसा टेक्निकल इंटरव्यू नहीं हुआ था, जस्ट अ डिस्कशन ऑन माय प्रोजेक्ट्स. उसके बाद आई अगेन आफ्टर दैट आई वाज स्टिल लुकिंग फॉर अनदर जॉब्स. तो while working like with TCS, and थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन हो रहा था मेरा with the company and all, so you can consider this as a freelancing gig as well. तो इसके बाद I interviewed for one other company in Pune. वहाँ पे the interview round was very nice. वहाँ पे मेरे 3 राउंड्स हुए थे. फर्स्ट वन वाज द जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू राउंड. उसमें सारे आउटपुट क्वेश्चंस, व्हाट इज योर क्लोजर, ऑल जावास्क्रिप्ट बेसिक्स और उससे रिलेटेड चीज़ें, हाउ द JS वर्क्स एंड ऑल. तो अगर आपका नमस्ते जावास्क्रिप्ट क्लियर है तो यू विल बी एबल टू क्लियर दैट, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है वो प्लेलिस्ट. तो इट वाज अराउंड दैट. सेकंड वाज माय मशीन कोडिंग राउंड. मशीन कोडिंग राउंड में क्वेश्चन वाज सिंपल. मुझको कुछ आई थिंक रिएक्ट टाइमर टाइप का इम्प्लीमेंटेशन करना था. सो लाइक इट वेंट इजी स्मूथ फॉर मी. एंड द थर्ड राउंड वाज लाइक अराउंड लो लेवल, मतलब लाइक सिंपल बट सिस्टम डिजाइन राउंड. तो मुझको कुछ तो आई गेस अमेजॉन डिजाइन करने के लिए बोला था फ्रॉम द फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव.
तो उसके लिए आई वाज एबल टू क्लियर ऑल 3 राउंड्स एंड फिर मेरा वो अच्छा आई गेस 10 to 12 LPA रिमोट ऑफर हो गया था एंड दैट हेल्प मी अलॉट या सो उसके बाद स्टिल आई वाज लुकिंग फॉर इवन मोर जॉब्स तो उसके बाद आई अगेन स्टार्टेड इंटरव्यूइंग फॉर अनदर companies. Mainly major of my interviews at those time was just around these only JavaScript, React and थोड़ा बहुत I did not focus much on DSA क्योंकि मेरे से वो पूछा नहीं गया था. If somebody has asked me during my interviews more on DSA तो मैंने DSA भी preparation कर लेता but around those time मेरे को सिर्फ JavaScript के थोड़े बहुत questions about sets, maps और just basic JS की strings and arrays के around questions है तो मैंने वही थोड़े बहुत practice किए थे lead code से around 2 weeks or 3 weeks and उसके बाद I was able to clear most of the questions. तो इसके लिए से मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन इसके बाद नहीं करा ऑन DSA बट that was also my opinion of the people was asking me कि तुमने कितना DSA किया है तो या सो आफ्टर दैट मैंने इंटरव्यूज देते देते मोस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ दीज 3 टॉपिक्स मैंने कवर करे एंड आई वाज एबल टू क्लियर लॉट ऑफ अदर रोल्स एज वेल. एक मैंने 12 LPA का किया था एक आई वाज एबल टू क्रैक ऑन 13 LPA बट वो ऑन साइट था इन दिल्ली तो मैं ज्वाइन नहीं करा वहाँ पे बट सिमिलरली ऐसे करते करते आई क्रैक्ड अराउंड 4-5 ऑफर्स आई थिंक सम ऑफ देम वर रिमोट सम ऑफ देम वर ऑन साइट एंड मेजोरिटी उसमें से कंट्रीब्यूशन था लिंक्डइन का नौकरी का एंड थ्रू वेल फाउंड एंड हाउ आई यूज्ड टू रीच आउट टू पीपल वाज मैं ऑलमोस्ट अराउंड 100 एप्लीकेशंस अप्लाई करता था उस टाइम पे एंड मेरे पास एक कोल्ड ईमेल की एंड कोल्ड मैसेज की एक टेम्पलेट था अराउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड मैं वही कॉपी पेस्ट करके सबको भेजता रहता था. दैट इज अ वेरी बैड अप्रोच क्योंकि तुमको कस्टमाइज करना चाहिए बट उस टाइम पे मैं बल्क रीच आउट कर रहा था तो फिर मैं यही प्रैक्टिस फॉलो करता था. तो आई यूज टू लाइक ऑलमोस्ट अप्लाई 50-60 वेल फाउंड में स्टार्टअप्स पे फॉलोइंग माई this particular template message and कहीं से भी LinkedIn से if I was able to find out any HR agency का email और any recruiter का email तो I used to just email them कि अगर कोई opportunity होगी तो you know look out for me and नौकरी पे like I had made थोड़ा बहुत filter का emails बना रखा था तो any time अगर कुछ भी reactive openings आती थी तो I used to got an email so मैं वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर लेता था and I also used to use some extension as well. तो कहीं कहीं पे यू नो फॉर रिमोट रोल्स जैसे ग्रीन हाउस करके एक वेबसाइट थी ये सब जॉब बोर्ड्स थे जो कि टेलीग्राम पे होते थे तो इसमें मेजॉरिटी एप्लीकेशन प्रोसेस फिलिंग करने का सेम होता था तो मेरे पास कोई एक्सटेंशन था इफ आई रिमेंबर करेक्टली मैं उससे बस ऑटोमेटिक अप्लाई कर लेता था तो दिस वे आई यूज टू डू दैट एंड मेरा शेयर प्रोसेस उस टाइम पे था कि आई यूज टू जस्ट वर्क ऑन वॉल्यूम. मैं जितना ज़्यादा अप्लाई करूंगा अगर मैं 100 अप्लाई करूंगा तो 10 में से रिस्पॉन्स आता था एक इंटरव्यू जाता था एंड उस 3 से 5 महीने के टाइम पे आई ऑलमोस्ट अपेयर्ड फॉर 70+ इंटरव्यूज एंड उनमें से मैंने ऑलमोस्ट 8 से 10 इंटरव्यूज क्लियर किए थे एंड आई वाज एबल टू गेट लाइक 6-7 ऑफर्स. तो दिस वे एट द लास्ट आई जॉइंड अ Web3 स्टार्टअप that I discussed and वहाँ पे my interview was around system design basically. Again I think उन्होंने मुझे कुछ तो front end पे डिज़ाइन करने के लिए बोला था and just they wanted to check my knowledge. तो Redux पे knowledge, Redux toolkit पे how will I scale the आर्किटेक्चर एंड ऑल इस सब के बारे में फ्रंट एंड से हम कैसे हार्ड करेंगे डिस्कस करेंगे व्हाट विद योर एप्लीकेशन लेयर कैसी रहेगी सर्विस लेयर कैसी रहेगी यूआई लेयर कैसी रहेगी इन सब के बारे में इन जनरल डिस्कशन हुआ था एंड आई जॉइन देयर एंड उस टाइम पे आई मेड माई फर्स्ट स्विच दैट वाज द मेजर टेक स्टैक जो कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंड नेक्स्ट.जेएस के अराउंड था. नेक्स्ट.जेएस भी मैंने इस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद अच्छे से ब्रशअप किया इससे पहले मुझे सिर्फ रिएक्ट आता था. सो व्हेन आई जॉइन देयर तब मुझे पता चला कि हाउ द सर्वर कंपोनेंट्स एंड ऑल थिंग्स वर्क्स व्हाट इज सर्वर साइड रेंडिंग स्टैटिक साइड जनरेशन ये सब क्या होता है इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम नेक्स्ट.जेएस क्यों प्रीफर करते हैं रिएक्ट के ऊपर मोस्ट ऑफ द कंपनीज. तो ये सब मैंने टॉपिक्स और पढ़े डीप लेवल पे जब मैं वहाँ काम करने लगा और मैंने Web3 भी बहुत पढ़ा. तो Web3 पे मेरा टेक स्टैक था वागमी.js एंड ether.js. ये बेसिकली वी यूज दिस libraries to interact with the contracts and blockchain. तो if you want to send pay any transaction कोई gas कैसे handle करते हैं in the transaction like in the blockchain and all तो इस सब के लिए मैंने वागमी और ether.js पे करा था. I also learned Arcana. I learned about wallet adapters and all. मैंने wallet integrate कैसे करते हैं I used to use Rainbow Kit for wallet adapters. So ये सब चीज़ें पढ़ी जो कि मेरे स्टार्टअप में यूज़ हो रहा था and I just picked on things. मैंने इन जनरल पढ़ा कि ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है हाउ द गवर्नेंस प्रोटोकॉल वर्क्स
इन जनरल हमारा डेफाई एप्स बनते कैसे हैं, लेंडिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, और बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड पूल्स क्या होते हैं, इन सब टॉपिक्स पे अराउंड अराउंड काम किया था. तो मेजरली आफ्टर फ्रंट एंड इंजीनियरिंग मैंने जो वेब3 की स्किल सीखी वो अराउंड दिस थी. एंड मैं चाह रहा था कि आई वॉज प्लानिंग टू switch full time to like a solidity backend developer role. तर I did not get that good as opportunity, और उसके बाद I did this for 1.5 years, and उसके बाद I decided to switch back to AI, क्योंकि AI पे मुझे काफ़ी ना, मतलब मैं इवन लुकआउट भी नहीं करता था तो मेरे को रोल्स मिल जाते थे सामने से. सो डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई अ बिट इन AI. अगर नहीं होता तो आई विल गेट बैक टू वेब3. सो सो मैं ये कर रहा था. सो दीज वर द स्किल्स. मेजरली फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही था अभी भी, बट आई ऑल्सो वॉज ओनिंग वेब3. तो इसके बाद अराउंड दिस टाइम आई वॉज ऑल्सो वर्किंग, मैंने बताया था, एक यूएस स्टार्टअप से रिमोट रोल्स में काम करता था. तो आई वॉज एबल टू वर्क विथ लाइक 3 डिफरेंट पीपल, 3 डिफरेंट कंपनीज, फाउंडर्स के साथ. एंड वहाँ पे भी मेरा टेक स्टैक था कि आई यूज टू ओन फ्रंट एंड, टेलविन CSS एंड ऑल, जावास्क्रिप्ट करता था, टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली. एंड उसके बाद हाँ मैंने पाइथन सीखा था, बिकॉज एक मैंने AI कंपनी पे वर्क किया था, तो दे वांटेड मी टू बिल्ड बैक एंड फॉर देम लिटिल बिट. तो मैंने तब पाइथन सीखना स्टार्ट किया था. सो आई स्विच्ड अ लिटिल बिट फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड. मैंने पाइथन यहाँ सीखा था. गोलैंग मैंने वेब3 में कंपनी में भी सीख लिया था, क्योंकि वहाँ पे हमारा बैक एंड गोलैंग में था. तो इस तरह करते करते मैं फ्रंट एंड हैवी और थोड़ा बहुत इधर उधर विद द हेल्प ऑफ AI इन कर्सर मैं बैक एंड पाइथन और गोलैंग कर लेता था. After this, when I interviewed for this US remote startup where I got like a 90 LP offer, वहाँ पे my interview was also around front end only. उनको main वही चाहिए था, but they also asked me and have a little bit of discussion. Main तो assignment था, but I had a discussion here and there about web sockets, architecture, वेब RTC पे भी हल्का हल्का डिस्कशन हुआ था. मेनली इट वाज अबाउट वेब सॉकेट. मैंने एक गेमिंग एप्लीकेशन भी बनाया हुआ था इससे पहले प्रोजेक्ट पे, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था. और लाइक आई वाज जस्ट शोइंग देम माय प्रोजेक्ट. सो अगेन सारा डिस्कशन मेरे प्रोजेक्ट्स पे हुआ था, मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम किए थे, एंड उस टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हुई है, एंड आई वाज एबल टू एक्सप्लेन देम. एंड आई थिंक वही मेरे लिए काम किया, एंड आई वाज एबल टू गेट इन हियर. After I get in here, I started picking even more things. मेरे को मैंने बताया था as it is I had a little bit background in Python and Golang, तो मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ to get in deeper expertise. मैंने यहाँ पे भी इसी वे में स्टार्ट किया. I started working on the APN OpenAI के SDK से, LLM से. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत LLM interactions and call वो भी मैं इसी से हैंडल करता हूँ. थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने Kafka consumers उन पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो कि यहाँ पे इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, तो इन जनरल वही डिस्कशन और हुआ है. एंड तो ओवरऑल इफ यू सी, मेरा ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लर्निंग्स नहीं थी. वट आई लर्न वॉज ऑन द जॉब, एंड विच एवर आई थॉट की मेक सेंस टू लर्न एट दिस टाइम. एंड बाय द टाइम if I keep repeating, like if I keep experimenting, and मैं just iterate करता रहता था on my learnings. So that's how I build it. So yeah, I think that would be it for this video. Let me know if you like this video or not. If you wanted to ask more questions on these topics, if you want to know more about my journey, you can always reach out to me in my socials, and let me know अगर कुछ भी मुझे next topic पे video बनाना होगा. Also guys, one of the main topics that I forgot to talk about is, like, a lot of people ask me in my comments that what kind of roadmap I followed. So one thing I want to discuss is, never, like, with my 5 years of experience in tech domain, I prefer not to follow any specific content creator, because it limits your learning and horizon of any particular domain. What I prefer to learn from is that there's a site, very popular site called roadmap.sh. I just prefer to use that for list out all the topics that I want to learn from, and just manually search it out